Hello everyone, welcome to Panesia Tutor. In this video, we are going to cover the topic that is fallacies. And fallacies is one of the important topic from the examination point of view. And इस topic की हमें बहुत ज़्यादा demand आ रही थी, तो हम इस topic को आपके साथ लेके आए हैं, that is fallacies. Let me tell you that we have covered this topic in 3 different videos. In part 1, I'll cover formal fallacies, and in part 2 and in part 3, I will try to cover informal fallacies. So let me tell you here that if you want to avail the complete topic of fallacies, you can join PanesiaTutor.com, or if you want to avail the complete course of paper 1 with quality video lectures, notes, MCQs and online mock test series, you can join PanesiaTutor.com, or you can contact us at the given number. So let's start that how to make pasta. Oops, this is wrong because you were expecting some lecture here. So this is basically known as fallacies. That error in reasoning is known as fallacies. Now you were expecting, my audience was expecting that I am going to teach fallacies here. But I am telling you that how to make pasta. Now I'll tell you that how you can make a yummy pasta. इससे आपके मुंह में पानी भी आ सकता है, लेकिन हम fallacies को ही डिस्कस करेंगे. So fallacies का basically meaning क्या होता है? Fallacies means error. Fallacies को हम error कहते हैं. In a layman language, easy language, reasoning में fallacies को क्या कहा जाता है? Error कहा जाता है. So in this lecture, we will try to cover the formal fallacies. In remaining lectures, we will try, or in remaining videos, we will try to cover up with the informal fallacies. So as you can see on the screen that there is a dog who is sleeping and thinking that all cats have 4 legs. I have 4 legs, therefore I am a cat. This is basically known as fallacies. He is saying that all cats have 4 legs. ठीक है, सभी cat की 4 legs होती हैं, तो तभी करके मेरी भी 4 legs है. That's why I am a cat. So इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? fallacies कहते हैं. जहाँ पर जो हमारी रीजनिंग होती है वो क्या होती है? बैड रीजनिंग होती है. So let me tell you here that fallacies are mistaken beliefs based on unsound arguments. जो चीज आपकी अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर बेस करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं, उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? फैलेसीज कहते हैं. इसको हम बैड रीजनिंग भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट. और हिंदी में जब मैं बात करूं तो गुमराह करने वाले वाक्य. बहुत डेफिनेशंस दी गई हैं फैलेसीज की. अगर हम इजी लैंग्वेज में फैलेसीज को और इजी तरीके में मैं आपको अगर फैलेसीज को समझाती हूं तो बेसिकली आपको एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज एरर. एंड विच द एरर और दैट रीजनिंग विच लीड्स टू रॉन्ग रीजनिंग, दैट आर्ग्यूमेंट्स विच लीड्स टू रॉन्ग रीजनिंग इज नोन एज फैलेसीज. तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर मीनिंग देख सकते हो फैलेसीज का. आई हैव रिटन दैट फैलेसीज आर मिस्टेकन बिलीव्स based on unsound argument. They derive from reasoning that is logically incorrect. वो उस reasoning से derive किया जाता है जो logically incorrect होता है. Logically incorrect reasoning से जो चीज हम derive करते हैं, जो conclusion हम derive करते हैं, उसको basically हम क्या कहते हैं? fallacies कहते हैं. आगे लिखा है thus undermining an argument validity. तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं फैलेसीज की, तो फैलेसीज आर एरर्स बट कैन बी ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग. फैलेसी इज एन एरर ऑफ रीजनिंग इफ इट अकर्स एक्सीडेंटली. It is a trick of reasoning if a speaker or writer uses it in order to deceive or manipulate his audience. यहाँ पर उन्होंने बेसिकली क्या कह दिया कि fallacy एक एरर है. fallacy एरर कैसे है? उन्होंने कह दिया कि fallacy एक ट्रिक हो सकती है रीजनिंग की. fallacy is an error of reasoning if it occurs accidentally. अगर वो एरर तभी माना जाता है अगर वो एक्सीडेंटली अकर हो जाता है. आगे उन्होंने कह दिया कि एक ट्रिक फैलेसी को तब माना जाता है, इट इज अ ट्रिक ऑफ रीजनिंग इफ अ स्पीकर और राइटर यूजेस इट ऑर्डर टू डिसाइड और मैनिपुलेट हिज ऑडियंस. अब मैं चाहती हूं कि मैं अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकूं. जैसे कि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको कहा, नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ टू मेक अ पास्ता. सो मैं आपको जान के कुछ ऐसी चीज कह रही हूं जिससे मैं आपको मैनिपुलेट कर सकूं. वहां पर आपकी जो फैलेसी है वो ट्रिक बन जाती है. एंड फैलेसी को एरर तब माना जाता है जब वो एक्सीडेंटली अकर हो जाती है किसके अंदर? रीजनिंग के अंदर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली फैलेसीज. अब आप आगे देख सकते हो अपने स्लाइड्स में दैट करेक्ट रीजनिंग इन्वॉल्व्स क्लियर एक्सप्रेशन एंड वैलिड फॉर्म. अगर मैं करेक्ट रीजनिंग की बात करती हूँ तो वो एक वैलिड फॉर्म में होगी. वो प्रूव कर रहा होगा, जो कंक्लूजन होगा, जो भी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी उसको क्या कर रहा होगा? प्रूव कर रहा होगा.
आगे लिखा है fallacies are type of argument or expression which are held to be an invalid form or contain error in reasoning. अब जो एक लॉजिकली रीजनिंग होती है, लॉजिक रीजनिंग होती है, जिसका लॉजिक गिवन होता है या आपका कंक्लूजन मैच कर रहा होता है या सपोर्ट कर रहा होता है आपकी स्टेटमेंट को, वो एक गुड रीजनिंग होती है. यहाँ पर फैलेसीज का बेसिकली मतलब क्या है कि उस रीजनिंग में कहीं ना कहीं एरर होता है. ठीक है, दे आर मिस्टेकन बिलीफ बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट. वो मिस्टेकन बिलीफ होते हैं जो किस पर बेस करते हैं, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट पर. उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैलेसीज कहते हैं. जैसे कि आपकी पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि उस कैट को अपने आप को वो क्या देख रही है, बेसिकली उसको मिरर में वो लाइन दिख रहा है. तो वो बेसिकली क्या है, मिसलीडिंग है कि मैं क्या हूं और मैं अपनी ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए मैनिपुलेट कर रही हूं. दैट इज बेसिकली फैलेसीज. ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो. अगले एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ है दैट पीपल डाइड ऑफ कैंसर बिफोर सिगरेट्स वर इन्वेंटेड, राइट. और उसके बाद सो स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर. तो ये जो आपका कंक्लूजन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी स्टेटमेंट को. सो दिस इज बेसिकली नोन एज फैलेसीज. Now you can see the next slide, that is usually there are 5 common categories of fallacies as follows, and the first one is using feelings. Feelings का use करके जो fallacies, जो error होते हैं हमारी reasoning में. ठीक है, नेक्स्ट है distracting from the argument, distract करना argument के थ्रू. The next one is misinformation, जो information है वो गलत है या कुछ wrong information है. जनरलाइजेशन टू मेक अ पावरफुल स्टेटमेंट, कि कुछ ऐसी जनरलाइजेशन स्टेटमेंट दे देना, ऐसा जनरलाइजेशन स्टेटमेंट इसीलिए देना ताकि लोग उस पर बिलीव करने लग जाए, वो भी एक टाइप की फैलेसीज होती है. तो जनरलाइजेशन भी यहाँ पर यूज की जाती है. इररिलेवेंट कनेक्शंस, तो ये आपके बेसिकली क्या थे, 5 कॉमन कैटेगरीज थी किसकी, फैलेसीज की. Now as you can see on your screen, the main topic which is mentioned under your syllabus is formal fallacies and informal fallacies. So as you can see on your screen that formal fallacies and informal fallacies, and formal fallacies is also known as deductive fallacies and non sequiturs, and informal fallacies is also known as inductive fallacies. So there are various types of formal fallacy, as you can see: appeal to probability, bad reason fallacy, masked man fallacy, and the last one is non sequitur fallacy. And similarly, there are various type of informal fallacies, as you can see: fallacies of relevance, fallacies of defective induction, fallacies of presumption, and the last one is fallacies of ambiguity. इनके अंदर भी वेरियस टाइप की फैलेसीज होती हैं. आपकी मेन जो फैलेसीज होती है वो 15 टाइप्स की मानी जाती हैं. जो रिमेनिंग रहेगी फॉर्मल के अलावा वो सारी फैलेसीज आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज में आती है, जैसे हैस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है, रेड हियरिंग. तो वो सारी आपके इनफॉर्मल फैलेसीज के अंदर आती है, जिनको हम अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ किसके बारे, दैट इज फॉर्मल फैलेसीज. So as you can see on your screen, one more thing that is very important before going or moving ahead to that is formal fallacies. I would like to tell you that when I'm talking about fallacies, so here there is something to be tested. What is that? To test an argument for fallacy is to focus on the concepts of ethos, logos and pathos. बेसिकली अगर आप आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन 3 चीजों को कंसीडर रखना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एथोस, लोगोस एंड पैथोस, एज इट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन. दैट एथोस मीन्स एथिक्स, अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी, and basically logos means it is starting from L, so logos means logic, logic से सोचना, logic में कुछ पॉलिसी में गड़बड़ होना. pathos means emotion. ठीक है, अब ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. कई बार वो आपसे टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं वहां पर कि आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करने के लिए वो क्या 3 वर्ड्स हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज एथोस, लोगोस एंड पैथोस. ठीक है, जो बेसिकली आपकी फॉर्मल फैलेसीज होती हैं वो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होता है, आपका इनवैलिड बेसिकली मानी जाती है. स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इशू होता है आपका उन फैलेसीज के अंदर, तो उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, दैट इज फॉर्मल फैलेसीज. सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मल फैलेसीज. So as you can see on your screen that what do you mean by formal fallacies or deductive fallacies? Formal or deductive fallacies occur when the conclusion does not follow the premises. अब आपका बेसिकली क्या होता है, आपकी स्टेटमेंट को, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करता क्या, कंक्लूजन. These are often referred to as non sequiturs or conclusion that have nothing to do with initial claims.
In formal fallacies, the pattern of reasoning seems logical, but it is always wrong. जो पैटर्न लग रहा होगा वो आपको कई बार लॉजिकल भी लग सकता है, लेकिन जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो वो हमेशा रॉन्ग होता है. कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में कुछ इशू होता है, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, फॉर्मल फैलेसीज कहते हैं. ठीक है, अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो आपका कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होगा. देखो, जब मैं बात कर रही हूँ फॉर्मल फैलेसीज की, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द एग्जाम्पल विच आई हैव इलस्ट्रेटेड हियर, दैट ऑल यूरोपियंस आर क्रिश्चियंस. राइट नाउ प्रीमाइस आपकी जो P2 है वो गिवन है, ऑल रशियंस आर क्रिश्चियंस. कंक्लूजन ड्रॉ किया, ऑल रशियंस आर यूरोपियन. नो डाउट कि आपकी दोनों कहीं ना कहीं पर आपकी जो P1 है और P2 है वो इनकरेक्ट भी हो सकती है, जरूरी नहीं. यस, नो डाउट कि यूरोपियंस में क्रिश्चियन ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, रशियन में क्रिश्चियन ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो आपका कंक्लूजन है वो आपकी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो अप नहीं कर रहा, उसके साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया, ऑल रशियंस आर यूरोपियंस. So conclusion is not supporting neither P1, means you can say conclusion is not supporting the statements. So that is basically known as fallacies, and that is basically known as formal fallacies. अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो the premises are untrue. अब यहाँ पर premises untrue है because of two reasons. फर्स्ट वन, यस हमने कहा कि ऑल यूरोपियंस आर क्रिश्चियंस. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सभी यूरोपियंस जो हैं या सभी रशियन जो हैं क्रिश्चियन होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, पहला रीजन. एंड द सेकंड वन इज द टू एथनिक ग्रुप्स आर सेट्स दैट डू नॉट ओवरलैप, बट द टू ग्रुप्स आर कंफ्यूज्ड बिकॉज दे आर लार्जली शेयर्ड बाय वन कम्युनिटी क्वालिटी. बेसिकली यहाँ पर वो अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो जो आपका कंक्लूजन ड्रॉ होके आया है वो सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी स्टेटमेंट को, तो ये आपकी एक टाइप की स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिफेक्ट है, स्ट्रक्चर में यहाँ पर एरर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल फैलेसी कहते हैं. तो ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, तो आप देख सकते हो. एग्जांपल नंबर सेकंड, दैट इज all cats are black, and second one is all dogs are black, therefore all cats are dog. तो ये भी बेसिकली क्या है, आपकी एक टाइप की फैलेसी है, आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, कंक्लूजन सपोर्ट नहीं कर रहा स्टेटमेंट को. सो दीज आर नोन एज बेसिकली फॉर्मल फैलेसीज इन रीजनिंग. नाउ you can see on your screen that there I have taken the three different pattern, right? The first one is true but invalid argument, the second one is false and invalid argument, and the third one is true but invalid argument. So let's take an example. First number, all mangoes are fruits. Yes, this is right statement. Second one, all apples are fruits. Yes, this is also a right statement. We can say that both the statements are correct. Now we are concluding all mangoes are apple. This is not correct. Conclusion जो है वो आपका correct नहीं है. That's why it is written true but invalid argument. जो argument है उसका जो structure है वहां पर error है, तो दोनों बातें statement की true थी, लेकिन conclusion ने statement को support नहीं किया, तो ये क्या है, true है but invalid argument है. अगर आप इन चीजों को syllogism through analytical table या फिर syllogism through Venn diagram करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके बहुत सारे outcomes होते हैं इसी premises से, ठीक है, इसी statement से. कुछ में वो कंक्लूजन सपोर्ट करता है, कुछ में नहीं करेगा, तो आप उस तरफ मत जाओ, साइलोगिज्म की तरफ इसमें जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ इतना देखना है. आप अगर इंडिविजुअली भी देखो, यस मैंगोज आर फ्रूट एंड यस एप्पल्स आर आल्सो फ्रूट, बट हम कह नहीं सकते कि ऑल मैंगोज आर, ऑल एप्पल्स आर मैंगो या ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है. तो यहाँ पर कंक्लूजन सपोर्ट नहीं कर रहा स्टेटमेंट को, तो ये आपका ट्रू है बट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में क्या है, error है, and that is basically known as fallacies. The next one is false and invalid argument. Now some men are green, Socrates is a man, therefore Socrates is green. अब यहाँ पर basically some men are green और नेक्स्ट सोक्रेट इज अ मैन. अब ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है बेसिकली, ठीक है. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और कंक्लूजन तो वैसे ही फॉल्स है, तो दैट्स व्हाई फॉल्स एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में भी इशू है एंड स्टेटमेंट में भी इशू है, ठीक है. स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट सेकंड ऑल मैन, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सोक्रेट इज अ मैन एंड ऊपर लिखा हुआ है सम मैन आर ग्रीन. कौन ग्रीन होता है, तो मतलब आपका जो डिफेक्ट है वो स्टेटमेंट में भी है, तो ये आपका हो गया बेसिकली फॉल्स एंड
इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो ऐसा ही आपका नेक्स्ट है ट्रू बट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। सम मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट इज अ मैन देयरफॉर सोक्रेट इज अ मॉर्टल। तो ये भी एक टाइप का आपका फर्स्ट वाले केस की तरह ही हो गया, ट्रू बट इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो ये एक मैं आपको ट्राई कर रही हूँ ये समझाने का दैट व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल फॉलिसीज। इनफॉर्मल फॉलिसीज बेसिकली कंक्लूजन आपका जो होगा वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा किसको, स्टेटमेंट्स को, उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं, टेक्निकल में, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं क्या होगा, इश्यू होगा। अगर मैं कह रही हूँ 5 + 5 = 25, सो दैट इज बेसिकली नोन एज फॉर्मल फैलेसी। उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल फैलेसीज कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था किसका, फॉर्मल फैलेसीज का। एंड फैलेसीज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या हमने वर्ड्स याद करे थे, एथोस, लोगोस एंड पैथोस, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ फैलेसीज। So as you can see on your screen, the types of formal fallacies are of basically 4 types की आपकी formal fallacies होती है। And the first one is appeal to probability, and the second one is bad reason fallacy। ठीक है, थर्ड वन है masked man fallacy, and फोर्थ वन है आपकी non sequitur fallacy। एक एक करके हम उसको डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट फैलेसीज का क्या मतलब है, और फॉर्मल फैलेसीज में वो क्यों इंक्लूड की जाती हैं, जो भी रिमेनिंग रह जाती हैं वो आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज का पार्ट है। Starting off with the first fallacy, that is appeal to probability. As you can see on your screen, that this is a statement that takes something for granted because it is probable or possible. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, मे और मे नोट, राइट। तो अब मे और मे नोट है यहाँ पर, तो उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फैलेसीज कहते हैं। When it is assumed that because something could happen, it is इनइनविटेबल दैट विल हैपन। जैसे हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या आएगा, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका फैलेसी होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल पर गिवन है, आई विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स ऑन दिस असाइनमेंट बिकॉज आई इंक्लूडेड अ विजुअल एड, कि पक्का मुझे, मैंने विजुअल एड्स का यूज किया तो मुझे गुड मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर मे और मे नोट है, गुड मार्क्स मिल भी सकते हैं, गुड मार्क्स नहीं भी मिल सकते। ठीक है, तो इसी कारण हम अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है, उनको हम टेकन एज ग्रांटेड ले लेते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी होती है कि मे और मे नोट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिसेंटली एग्जाम्पल लूँ, हम कह रहे हैं कि यूजीसी का जो एग्जाम है वो 16 को पहले इन्होंने डेट दी, 16 सितंबर, तो वहां पर बच्चों को प्रोबेबिलिटी था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम थोड़े से लेन हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग। एकदम से सडन जब पता लगा कि एग्जाम है, तो हम एकदम से डेट्स जब आ गई, प्रोबेबिलिटी नहीं रही, देन वी हैव स्टार्ट प्रिपेयरिंग मोर सीरियसली, राइट। सो प्रोबेबिलिटी जहां पर होती है वहां पर मे और मे नोट की सिचुएशन होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, दैट इज आई सी अ डार्क क्लाउड्स ऑन द होरिजन, डार्क क्लाउड्स मीन रेन, इट्स गोइंग टू रेन हियर टुडे। मैं ये मान के चल रही हूँ, मैं डार्क क्लाउड्स को देख रही हूँ, और डार्क क्लाउड्स का मतलब रेन होता है, जरूरी नहीं है। अब ये बात, ये एक फैलेसीज है, एक एरर है। कई बार क्लाउडी डे होता है, रेन नहीं भी होती, लेकिन डार्क क्लाउड्स है, और इससे मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि बारिश आज होगी। सो दैट इज बेसिकली fallacy, and this fallacy is known as probability. That is, यहाँ पर probability है, appeal to probability वाली fallacy है। फॉर्मल फैलेसी का पार्ट है कि यहाँ पर वो रेन हो भी सकती है और रेन नहीं भी हो सकती। लेकिन मैंने डार्क क्लाउड्स देखे, डार्क क्लाउड्स का मतलब मैं मान रही हूँ कि रेन होगी, तो मैं कह रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली कि आज यहाँ पर रेन होगी। सो दैट इज बेसिकली नोन एज अपील टू प्रोबेबिलिटी विच कम्स अंडर द फॉर्मल फैलेसी, एंड ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज अपील टू प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं अपील टू प्रोबेबिलिटी की, तो उस फैलेसी का क्या मतलब हुआ कि मे और मे नोट की सिचुएशन है, हमें पता नहीं है कि वो चीज़ होगी डेफिनेटली। हमने एक अजम्पशन, मतलब हमने एक प्रोबेबिलिटी लगाया, हमने एक सोचा कि डार्क क्लाउड्स है, डार्क क्लाउड्स का मतलब कि जहाँ पर भी बादल होते हैं वहाँ पर बारिश होती है, राइट। तो उसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बारिश होगी। सो दैट इज बेसिकली अ फैलेसी इन रीजनिंग। उसको हम फैलेसी कहते हैं, एरर कहते हैं रीजनिंग के अंदर, और इसी को हम कहते हैं अपील टू प्रोबेबिलिटी। होप कि आप सबको समझ आएगा। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट और क्वारी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट द गिवन नंबर, जो आपको लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी मेंशन किया गया है। और डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारी कंप्लीट वीडियो कोर्स ले सकते हो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट
करेगा, बिकॉज हम YouTube पे जो वीडियो डाल रहे हैं दैट इज बेसिकली ओनली 10% एंड द कंप्लीट कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग ऑन आवर PanaceiaTutor.com, so you can join that. So let's come back to our topic, that is fallacies, and that means formal fallacy which we are discussing today. So when I am talking about fallacy number second, that is bad reason fallacy. फॉर्मल फैलेसी में जो सेकेंड फैलेसी है वो बैड रीजन फैलेसी है. बैड रीजन फैलेसी का क्या मतलब होता है? द बैड रीजन फैलेसी स्टेम्स from the claim that because the reasons given for a certain conclusion are bad, therefore the conclusion must also be incorrect. This fallacy supposes that it is not possible to give a bad reason for a correct conclusion. In fact, it is possible to give a bad reasoning for a valid conclusion. अब जैसे कि आपको errors in reasoning due to bad logic. अब यहाँ पर जो लॉजिक होगी वो बहुत क्या होगी? वो बहुत बैड होगी. अब अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ दैट व्हाट डू यू मीन बाय बैड रीजन फैलेसी, आपने जो भी स्क्रीन पर देखा आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज टेक्निकल वर्ड्स होते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन कई बार इतनी मुश्किल लगती है कि हमें समझ नहीं आता. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझ आए. बैड रीजन फैलेसी का क्या मतलब होगा? देखो, बैड रीजन जो फैलेसी होती है वो क्या होती है कि जो लॉजिक होती है वो बहुत बैड होता है. मतलब वो इतना बुरा लॉजिक होता है कि जो आपका स्टेटमेंट है उसको प्रूव ही नहीं कर रहा होता. ठीक है, इसका अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. और हम एक बहुत फनी एग्जाम्पल भी लेंगे. एग्जाम्पल, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई देयरफॉर दे आर नॉट बर्ड्स. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता तभी करके वो बर्ड नहीं है. ये कैसा एक रीजन है? ये बैड लॉजिक है, बैड रीजन है. इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? बैड रीजन फैलेसीज. बिकॉज हम सबको पता है कि ऑस्ट्रिच एक बर्ड माना जाता है. ठीक है, उसके बाद डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स देयरफॉर डॉग्स डू नॉट फ्लाई. ये भी कैसा रीजन है कि डॉग्स को ऊंचाई से डर लगता है तभी करके डॉग्स उड़ नहीं सकते. कौन सा डॉग आज तक हमने उड़ते हुए देखा है? तो ये एक बैड लॉजिक है, एक बैड रीजन है. इसको हम क्या कहते हैं? बैड रीजन फैलेसी कहते हैं. अगर मैं इसका बहुत फनी एग्जांपल लूं, एक गर्ल का एक बॉयफ्रेंड है जो कि क्या ओल्ड कार ड्राइव कर रहा है. अगर मैं कह रही हूं हर न्यू बॉयफ्रेंड ड्राइव्स एन ओल्ड कार, ही मस्ट बी पुअर, शी शुड ब्रेक अप विथ हिम. ठीक है, कि अगर वो ओल्ड कार चला रहा है तो इसका मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो बहुत पुअर है, तभी मेरी फ्रेंड को उसको छोड़ देना चाहिए. ठीक है, ये एक बहुत बैड रीजन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत सिंपल रहता है तो हम ये मान के चल रहे हैं दैट ही इज वेरी पुअर, जबकि वो पुअर ना भी हो और हम कह रहे हैं वो ज्यादा पुअर है तो मैं इसको अपना फ्रेंड नहीं बनाती बिकॉज ये तो बहुत पुअर है. सो दैट इज द रीजन विच यू आर गिविंग. वो क्या है? बहुत बैड रीजन है, बहुत बैड लॉजिक है. तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? बैड रीजन फैलेसी कहते हैं. जो रीजन होता है आपका कंक्लूजन को एक कंक्लूड करने का बाद को रीजन जो आप दे रहे हो उस चीज को प्रूव करने का, वो बहुत बैड रीजन है. सो दैट इज नोन एज बैड रीजन फैलेसीज. इसको हम आर्ग्यूमेंटम एंड लॉजिकम फैलेसीज भी कह देते हैं. ठीक है, तो इस फैलेसी का मतलब क्या हुआ? दैट इन दिस टाइप ऑफ फैलेसी द कंक्लूजन इज अज्यूम्ड टू बी बैड बिकॉज द आर्ग्यूमेंट्स आर बैड. कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है वो इतने बैड है कि आप कंक्लूजन में बहुत एक बैड ड्रॉ कर रही हो. ठीक है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि उसका जो मेरी फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड जो है वो एक कार ड्राइव कर रहा है जो कि ओल्ड कार है. इसका मतलब वो पुअर है तो मेरी फ्रेंड को उसको छोड़ देना चाहिए. सो दैट इज बेसिकली नोन एज बैड रीजन फैलेसी. ठीक है, जैसे हमने और एग्जांपल लिए कि डॉग्स को हाइट से डर लगता है तभी करके वो फ्लाई नहीं कर सकते. दिस इज अ बैड रीजन फैलेसी. ऑस्ट्रिच जो है बेसिकली वो फ्लाई नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर नॉट बर्ड्स बट दे आर बर्ड्स. सो दिस इज बेसिकली नोन एज बैड रीजन फैलेसी. The first one we discussed about appeal to probability, and the second formal fallacy which we have discussed is about bad reason fallacies. Hope you must be enjoying the lecture. ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको मैं इजी लैंग्वेज में फैलेसीज को समझा सकूं. Now I'll tell you that what do you mean by masked man fallacy. As you can see on your screen, the masked man fallacy is a logical fallacy that is committed when someone assumes that if two or more names or description refer to the same thing, then they can be freely substituted with one another in a situation where that's not the case. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, इजी लैंग्वेज में बात करें, कि दो चीज़ें जो हमें बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं, आइडेंटिकल लग रही हैं, सेम लग रही हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सेम ही होंगी हर एक सिचुएशन में. क्या पता केस अलग हो, क्या पता सिचुएशन अलग हो तो वो सेम ना भी हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वो सेम होगी. सो दैट इज ऑल्सो एन एरर इन रीजनिंग एंड इट इज नोन एज मास्क्ड मैन फैलेसी. इसका मैंने एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. अगर हम बात करते हैं, देखो एग्जांपल देखो, द मास्क्ड मैन फैलेसी कुड अकर इफ समवन क्लेम दैट गिवन है
पीटर पार्कर, आपको पता होगा पीटर पार्कर जो हमारा स्पाइडरमैन, बेसिकली बच्चे जानते हैं उनको, स्पाइडरमैन, एंड गिवन दैट द सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क नो द स्पाइडरमैन सेव देयर सिटी, दैट द सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क नो दैट द पीटर पार्कर सेव देयर सिटी। अब पीटर पार्कर ने जो मूवी स्पाइडरमैन में सिटी को, न्यूयॉर्क को क्या किया, सेव किया। अब एज अ पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन था, वहां न्यूयॉर्क के लोग मान रहे हैं कि उन्होंने उनकी सिटी को बचाया। अब उनकी सिटी में कुछ हो गया तो यही मान रहे हैं जो पीटर पार्कर थे वही आके उनकी सिटी को बचाएंगे। सो दैट इज बेसिकली अ फैलेसी, दैट इज बेसिकली एन एरर, एंड दिस इज नोन एज मास्क्ड मैन फैलेसी। नो डाउट कि वही शक्ल है, वही इंसान है, लेकिन वो उनका एक्टिंग, वो उनका प्रोफेशन था जब वो एक्टिंग कर रहे थे, वो एक मूवी थी। इन रियल लाइफ वो एक स्पाइडरमैन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बचपन में हमारा 90s में एक सीरियल आता था, टीवी सीरियल विच वॉज वेरी पॉपुलर सीरियल था, दैट वॉज शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान जो थे, अब जो शक्तिमान इन रियल लाइफ ऐसा नहीं है, देखो बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे क्या करने लगे थे, वो टेरिस से जंप करने लगे थे कि हमें शक्तिमान आके बचाएंगे। अब वहां पर शक्तिमान वो वाला, वो ताकत वाले शक्तिमान नहीं थे, वो पावर्स, वो सब चीजें उनके पास नहीं है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बट लोग मान रहे हैं कि वही बच्चे मान रहे थे कि वो अगर हम कूदने लगेंगे तो शक्तिमान आके हमें बचा लेंगे। सो दैट इज बेसिकली नोन एज फैलेसीज, कि दो पर्सन नहीं, दो कोई भी ऐसी चीज जो आपको आइडेंटिकल दिख रही है, वो सेम है, ठीक है, और आप मान के चल रहे हो कि वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी या सेम चीजों में रिएक्ट करेंगे। सो ऐसा नहीं होता, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, मास्क्ड मैन फैलेसी। सपोज करो आपकी क्लास में कोई टीचर है, ठीक है, वो स्पेक्स लगाते हैं, उनकी छोटी सी मूछें हैं और उनके माथे पर रिंकल्स रहते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, और सिमिलर आप जब अपने नेक्स्ट सेशन में जाते हो, नेक्स्ट क्लास में जाते हो, सेम वैसे लुक का टीचर आपको क्लास टीचर मिल जाता है। तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ये टीचर का लुक वैसा ही है, सेम वैसे ही दिखते, तो ये भी स्ट्रिक्ट होगी। सो दैट इज बेसिकली नोन एज फैलेसीज, और उस फैलेसीज को क्या कहते हैं, मास्क्ड मैन फैलेसीज कहते हैं, कि आप किसी की रिजेंबलेंस वो ज़्यादा है, उसके बेसिस पर आप मान के चले कि वैसा ही होगा, बट वो नहीं होता, तो तभी करके एक एरर हो जाता है किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर, एंड दिस इज नोन एज मास्क्ड मैन fallacy, and this is type number 3, informal fallacies. Now we are going to discuss the last fallacies, informal fallacies, that is non sequitur fallacy, a fallacy wherein someone asserts a conclusion that does not follow from the proposition. मतलब ऐसा conclusion draw कर लेना जो आपकी proposition को support नहीं कर रहा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, non sequitur fallacy. A fallacy committed when a conclusion does not follow the logically from its given premise. इसका एग्जाम्पल से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। I met with a car accident on a rainy day. No one should drive in the rain. मेरा एक्सीडेंट हुआ रेनी डे में, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, कुछ और गलतियां मैंने की हो सकती है, मेरी तरफ से गलती हो सकती है, जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ उनकी तरफ से गलती हुई, कुछ और रीजन हो, लेकिन वो रेनी डे था और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, उससे मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि रेनी डेज पर कार चलानी ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं चलानी चाहिए। सो दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, नॉन सिक्वेटेड फैलेसीज। आई लिव इन अ हाउस विदाउट अ बेसमेंट एंड दैट हाउस फ्लडेड। मैं एक घर में रहती थी जो जिसका क्या था, उसका बेसमेंट नहीं था, और वो घर क्या हो गया, बाढ़ में डूब गया। हाउसेज विदाउट बेसमेंट विल डेफिनेटली फ्लड। मैं एक कंक्लूड कर रही हूँ कि बिना बेसमेंट के जो घर होगा ना वो फ्लड हो जाएगा। जरूरी नहीं है, क्या पता जो मटेरियल हाउस में लगा वो वीक हो। तो हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो प्रोपोजिशन है उसको आपका कंक्लूजन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नॉन सिक्वेटेड फैलेसीज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 4th नंबर की फैलेसी थी, दैट इज नॉन सिक्वेटेड फैलेसीज। What all fallacies we have discussed in this lecture? We discussed about fallacies, that what do you mean by fallacies? We discussed about formal fallacies and their types. The first one we discussed about appeal to probability, and the second one we discussed about basically bad reason fallacies. उसके बाद हमने masked man fallacy डिस्कस किया, and लास्ट में non sequitur fallacy को डिस्कस किया कि जो आप रीजन दे रहे हो, जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, वो एक बैड कंक्लूजन है, मतलब जो आपका प्रोपोजिशन है उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा वो चीज को। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो, non sequitur fallacies. So we can conclude today's lectures, as you can see on your screen, that formal fallacies can be result of, formal fallacies क्यों हो सकती है, poor logic के कारण, unsound premises के कारण, illogical deductions के कारण, and invalid arguments के कारण आपकी जो है formal fallacies हो सकती है। Formal fallacies are illogical structured argument, जो लॉजिक जिसका नहीं होगा और स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इशू होगा, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एरर होगा, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मल फैलेसीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मल फैलेसीज, एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ
fallacies. In part 2 and in part 3 of fallacies, we will cover informal fallacies and previous year questions which is related to fallacies, जो कि मैंने combine करके निकाले हैं आप सबकी help हो ताकि आपको पता हो कि fallacies के किस type के questions आते हैं. So let me tell you here once again that this is only part 1. If you want the complete course of paper 1, in that you will get all the quality video lectures, detailed notes, MCQs and online mock test series. You can join PaniciaTutor.com, or if you are facing any query or you are having any doubts, you can contact us at the given number. Thank you guys, stay tuned and thank you so much for watching the video. I hope you might have understood this topic कि थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, but I tried my best कि मैं आपको इसको एक easy language में इस topic को समझा सकूँ. Still facing any doubt? You can contact us at the given number, and please don't waste your time for next attempt or for this attempt. If you want to prepare for UGC NET, you can contact us. Thank you guys and stay tuned. Keep learning and keep going. Thank you so much.